Thank you, Dr. Tosif. On behalf of IGNTU, I welcome all the guests, dignitaries, and persons of eminence, and those persons who are connected this way or that way on this digital platform to make fruitful and successful 2 days international webinar on literature and life in the era of COVID-19 organized by Department of English and Foreign Languages. I am happy enough to be connected with my friend Professor Rajkumar ji, Honorable Vice Chancellor Punjab University Chandigarh. Just I was getting the point from Professor David Ayers, University of Kent, UK. Professor Madhumita Das ji, Honorable Vice Chancellor Fakir Mohan University, Balasore. Professor Stephen Gill from Canada. Besides, Dean Faculty of Humanities Professor Khem Singh Deheria ji, Head Department of English Literature Professor Krishna Singh ji, Professor Abhilasa ji, Dr. Muhammad Tausifur Rahman, Professor Ajay Shukla ji, and all the other persons who are on this platform to deliver very important lectures to enrich the field of knowledge. It is well known to us that COVID-19 pandemic has immensely changed cultural, social, economic, and literary scenario of the world, where we are discussing the issues regarding man versus machine, talent and technology, migration, reverse migration, environment, and so many issues where we have to deal with the readiness of universities and institutions for the new revolutionary changes in education system. We have also to deal with perspectives of self-reliant society and the new requirement of literary world. I am hopeful that all of you will discuss all these issues in details. We have to deal with the alternative modes of teaching, changing socio-cultural behavior, dislocation and trauma of migration and homelessness, role of TV and social media in shaping the responsive masses about nationalistic feeling and awakening the religious spirit. Webinar has also incorporated the emerging new lifestyle, dietary habit, health awareness, and India's approach towards COVID-19 and its global acknowledgement. मुझे बहुत प्रसन्नता है इस विषय पर आयोजित इस वेबिनार से, कारण कि समाज को झंकृत करने की क्षमता साहित्य में होती है। न केवल झंकृत करने की क्षमता, अपितु जागृत करने की क्षमता, सतर्क करने की क्षमता, सावधान करने की क्षमता और आगे बढ़ने की प्रेरणा देने की क्षमता साहित्य में होती है। और साहित्यकार अपने विविध प्रकार के लेखों से, कविताओं से, रिपोर्ट से, छोटी छोटी कविताओं से, छोटे छोटे गद्य लेख से, छोटी छोटी कहानियों से हमें संबल प्रदान करने का काम करते हैं। आज का दौर एक कठिन दौर है जिसमें समाज का ताना बाना ही बदल गया है। आय, उत्पादन और आजीविका के साधन लगभग अवरुद्ध हैं, आवागमन के साधन लगभग अवरुद्ध हैं। हम सभी अपने स्थान पर, विशेषकर परिवार में केंद्रित हैं। हमारी व्यवस्था में पूरी धरा को ही परिवार माना जाता है। कहा जाता है अयम निजः परोवीति गणना लहुचेत साम उदार चरिता नाम तो वसुधैव कुटुंबकम। हिंदुस्तान उदार चरित्र के लोगों का देश है और हमारे लिए पूरी धरा ही एक परिवार है। इसलिए न केवल हम इस परिवार की चिंता कर रहे हैं जहां हैं, अपितु विश्व परिवार की भी चिंता कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया में हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी के जो वक्तव्य हैं, उनके द्वारा कराई जा रही तैयारियां हैं, वो बेमिसाल हैं। शिक्षा के क्षेत्र में माननीय मानव संसाधन मंत्री जी का निर्देश संदेश
हम सभी के लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होता है। आज के जो इशूज हैं, जैसे एक नया शब्द आजकल हम लोग रिवर्स माइग्रेशन दे रहे हैं, आजीविका और आवागमन के साधनों की कठिनाई के चलते हम मूल स्थान को लौटने लगे हैं। ऐसे में भविष्य क्या होगा, किस प्रकार के साहित्य की रचना होगी। माना कि जो पीड़ा है, एगोनी है, इस पर बहुत ज़्यादा लिखा गया, बहुत ज़्यादा विचार भी किया गया और कई माध्यमों से साहित्य की रचना हुई। हमारे साहित्यकार अपने अपने स्थान पर, मीडिया के लोग अपने अपने स्थान पर, जो मीडिया में नहीं है, जो साहित्यकार नहीं है, उन लोगों ने भी भावना प्रधान होकर बहुत कुछ लिखा। टिप्पणियाँ भी एक प्रकार की साहित्य होती हैं। इस तरह विभिन्न विधाएं साहित्य की आज बहुत ज़्यादा व्यवस्थित हो गई हैं और हम कह सकते हैं बहुत ज़्यादा हो गई हैं। इस कोरोना फेज में प्रोफेसर कृष्णा सिंह जी से मेरी चर्चा हो रही थी कि इसे कोरोना फेज कहें या कोरोना एज कहें या एरा ऑफ कोरोना कहें, सभी महत्वपूर्ण शब्द हो गए हैं। और इस जो हमारा थीम है इन द एरा ऑफ कोविड-19, इतना अधिक साहित्य लिखा गया इतने अल्प अवधि में कि कभी मुझे याद नहीं है इतिहास के किसी दौर में इतने कम समय में इतने अधिक साहित्य की रचना हुई है। कारण कि आज का साहित्यकार मनोदशा पर विचार कर रहा है, मानव की स्थिति पर विचार कर रहा है। न केवल प्रगति के सोपान क्या होंगे, स्थान क्या होंगे, नियमन क्या होंगे, इस पर चर्चा करने के, वो मनुष्य की वेदना क्या है, हमारी संवेदना क्या है, हमारी सोच की दिशा क्या होनी चाहिए, इस पर आज का साहित्यकार विचार कर रहा है। इसलिए आज का दौर भावना प्रधान साहित्य का दौर है। इसमें हम इमोशनल हो गए हैं अपने प्रति, अपने लोगों के प्रति, अपने से जुड़े हुए लोगों के प्रति। विश्व साहित्य इस दिशा में ज़्यादा सक्रिय है कि मनुष्यता का रक्षण कैसे करें, हमारे जो ह्यूमन वैल्यूज हैं उसे फिर कैसे इनकैलकेट करें। हमने उदारवाद की व्यवस्था में, भौतिकतावाद की व्यवस्था में ह्यूमन वैल्यूज को कहीं किनारे छोड़ दिया था। लस्ट बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण हो गया था कि हाउ टू अर्न मनी एंड हाउ टू एंजॉय। ये दो मिशन हमारे हो गए। अब इस मिशन से हम किनारे हो गए। अब हम बता रहे हैं कि कैसे हम संतोषपूर्वक जीवन जिएं, कैसे हम प्रकृति का विधान करें, पर्यावरण का ध्यान रखें। ये सारे विषय अब साहित्य के दायरे में हैं। एनवायरमेंटल इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, सिक्योरिटी इश्यूज डिस्कस हो रहे हैं, न्यूट्रिशन, मेडिटेशन, रिक्रिएशन पर हम नए सिरे से विचार कर रहे हैं और यह आज की आवश्यकता है। साहित्य समाज का दर्पण होता है, एक ऐसा आईना जिसे हम हमेशा साथ लेकर के चलते हैं, हमारे साथ चलता है, जहाँ जाते हैं दिख जाता है और इसमें गतिविधियाँ दिखाई देती हैं समाज की, राष्ट्र की, वैश्विक व्यवस्था की और विश्व मानवता की। तो आज साहित्यकार के लिए ज़्यादा जरूरी है कि संवेदना का वह स्वर वह उच्चारित करे जिसमें हमारी मनुष्यता जागृत हो जाए, एक दूसरे से सहयोग करने के लिए, व्यवस्था के साथ समन्वय करने के लिए, साथ ही हम भी जिएं, औरों को भी जीने दें, इस भाव को भरने के लिए। यह भी ध्यान रखें कि हमारी इस प्रक्रिया में धरा में सर्वत्र सुख आए। हमारा सिद्धांत है सर्वे भवन्तु सुखिनः, सब जगह लोग सुखी हों। हमारे आसपास क्या है, इस पर अब साहित्य को ध्यान देना है। आसपास हमारे कितनी समृद्धि है प्रकृति द्वारा प्रदत्त, जिसमें हमारे परिवार के लोग जो वापस लौटे हैं वह पुनः अपनी आजीविका तय कर सकें और यहीं से आत्मनिर्भर समाज, स्वावलंबी समाज और यह स्वावलंबी समाज आगे बढ़कर आत्मनिर्भर राष्ट्र की रचना में सहयोगी बनेगा। इस तरह से क्रमशः हम यह संत्रास, जिसका एक दौर है जो आने देने वालों में समाप्त हो जाना है, इस संत्रास को हम पार करेंगे और पुनः हम एक नई सामाजिक व्यवस्था में एक बेहतर भविष्य की रचना करेंगे, जिसमें मनुष्यता के लिए स्थान होगा, जिसमें सुख का वह धर्म होगा कि हमारा सुख दूसरे के लिए घातक ना हो, हमारा धर्म दूसरे के लिए घातक ना हो। हम एक स्पिरिचुअल सोसाइटी की रचना करेंगे, आध्यात्मिक समाज की रचना करेंगे, जिसमें सबको एक समान देखने का भाव होगा। हम दूसरों के साथ वैसा ही व्यवहार करेंगे जैसा हम अपने प्रति अपेक्षा करते हैं। आज के दौर में साहित्यकार को इन विषयों पर
बहुत ज़्यादा विचार विमर्श करना है, और ऐसा करके ही हम नेशन, माइग्रेशन, टेक्नोलॉजी के साथ लिटरेचर का तालमेल बैठा सकेंगे, और इन सभी दिशाओं को हम प्रेरणा देंगे कि मैन वर्सेस मशीन की लड़ाई में मनुष्य विजेता हो। हम केवल मशीन के आश्रय पर न रहें, हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के आश्रय पर न रहें। आप साहित्यकार लोग हैं, आप जानते हैं कि मनुष्यता तैयार करने का विधान साहित्य में होता है, साहित्यकार के पास होता है। मुझे पूरा विश्वास है कि संगोष्ठी के माध्यम से आप लोग आने वाली पीढ़ी को मानव मूल्यों से भरपूर करेंगे, और हम सब मिलकर, विशेषकर ज्ञान की दुनिया बन रही है, उसमें भारत को स्वच्छ, स्वस्थ, समर्थ, समृद्ध और सर्वाधिक महत्वपूर्ण राष्ट्र बनाने में सफल होंगे। मुझे पूरा विश्वास है कि इन बिंदुओं पर जो परिचर्चा हो रही है वो बहुत सार्थक होगी। इस वेबिनार की सफलता के लिए मेरी ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी ने ध्यानपूर्वक सुना, बहुत बहुत धन्यवाद।